Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is our lecture number 25 and we will discuss the Newton's divided difference interpolation formula to find derivatives. So आपने already Newton's divided difference formula पढ़ लिया है. इसको हम दोबारा यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो है वो डिराइव करेंगे. First of all, what is Newton's divided difference interpolation formula? In this formula, a function f of x is written in terms of divided differences as follows. F of x is equal to f of x naught plus x minus x naught, f of x naught x1 plus x minus x naught, x minus x1, f of x naught x1 x2 plus x minus x naught, x minus x1, x minus x2 into f of x naught x1 x2 x3 and so on. तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो आपके f of x naught x1 है, this is divided difference of x naught x1. Similarly, f of x naught x1 x2, it represents the divided difference of these 3 points x naught x1 x2, and in next term f of x naught x1 x2 x3, ये थर्ड ऑर्डर जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द पॉइंट्स x naught x1 x2 and x3. Similarly, in the last term, this is the divided difference of the points x naught x1 x2 x3 x4 with the fourth order plus so on. So this is the Newton's divided difference interpolation formula to interpolate a function for the tabular values. When the values of x are not equally distributed, you can use this formula. Even this can also be used for the equally distributed points, but it is more convenient to use for the unequal spaced intervals. So ये हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है. इसको आप पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप x को एज इट इज़ जो है वो रखें और इसकी वैल्यू पुट ना करें तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल फंक्शन. अदरवाइज आप इसको पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन की या उसके डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. बाकी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो है इसका मेन पर्पस यहाँ पर जो है वो अनइक्वल स्पेस इंटरवल्स को डील करने के लिए है. So this is equation number 1 and this is the divided difference interpolation formula to interpolate a function f of x. But we want to find its derivative because in this lecture we want to learn that how we can find the numerical derivative from a given table. So we will first differentiate equation number 1 with respect to x. So on the right hand side, each term will be differentiated with respect to x. F of x naught is constant. Similarly, f of x naught x1, this is also constant. F of x naught x1 x2, ये भी constant है. तो जितने भी राइट साइड पे डिफरेंसेस आ रहे हैं वो constant है आपके सारे. इसी तरह ये जो पॉइंट्स आपको x naught x1 x2 x3 ये भी आपको constant की फॉर्म में दिए गए होते हैं. सो ओनली x इज़ द वेरिएबल. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो एक तो तरीका ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद आप पावर रूल लगा के डेरिवेटिव ले लें.
दूसरा तरीका ये है कि इसको आप इसी तरह रहने दें और इसको हम बाय प्रोडक्ट रूल जो है इसका हम डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर सकते हैं. So let's see on the next slide. Differentiating with respect to x, we have हाँ जी. तो ये आपने डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइड्स पे. लेफ्ट साइड पे डी एफ बाई डी एक्स आ गया. राइट साइड पे आपने ओवरऑल तमाम टर्म्स का जो है वो डेरिवेटिव लगा दिया. टेकिंग डेरिवेटिव एंड अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल. अब प्रोडक्ट रूल लगा के हम टर्म बाई टर्म इसको डिफ्रेंशिएट जो है वो कर लेते हैं. सो ये आपने टर्म बाई टर्म जो है वो डेरिवेटिव लगा दिया. यहाँ पर अगर आप देखें ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एज अ कांस्टेंट, ये बाहर कॉमन आ गया और अंदर आपके पास डेरिवेटिव आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट का. प्लस इसी तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट थी, तो जब आपने डेरिवेटिव लिया तो ये सारा एज अ कांस्टेंट बाहर मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा. x minus x naught as it is into derivative of this function, this factor, plus x minus x1 as it is and derivative of x minus x naught. इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा. तीन फैक्टर्स हैं तो फर्स्ट सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव आ जाएगा. देन सेकंड फर्स्ट थर्ड एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव एंड देन सेकंड थर्ड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. सिंपली आप प्रोडक्ट रूल लगाते जाएं हर टर्म्स के ऊपर. तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा है. उसके बाद ये फैक्टर कॉमन लेके हमने लिख दिया एज अ कांस्टेंट. सिमिलरली यहाँ पर तीन फैक्टर थे तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, तीन टर्म्स आ जाएंगी. तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमने x माइनस एक्स नॉट का डेरिवेटिव लिया, बाकी दोनों को एज इट इज़ जो है वो कंसिडर किया है. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ द x माइनस एक्स वन. इसी तरह हमने लास्ट जो हमारे पास टर्म थी उसके अंदर चार फैक्टर थे तो हमने उनको भी इसी तरह से प्रोडक्ट रूल के थ्रू डिफरेंशिएट कर लिया है. ये तीन एज इट इज़, चौथे का डेरिवेटिव. हर टर्म के अंदर हमने जो है वो एक को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया है, बाकियों को हमने एज इट इज़ रखा है. एंड दिस इज़ द डिवाइडेड डिफरेंस फोर्थ ऑर्डर, सो इट इज़ अ कॉमन फैक्टर. तो अब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं. एफ ऑफ एक्स नॉट का डेरिवेटिव क्या आ गया, ज़ीरो आ गया. फिर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर वन आ गया. तो सिमिलरली आप देख सकते हैं हर फैक्टर में चूँकि सिंपल एक्स था तो हर जगह पे जो है वो आपका डेरिवेटिव वन आ जाएगा. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड टेकिंग डेरिवेटिव, द फाइनल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव इज़, तो इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई करें. डेरिवेटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये पहली टर्म बन जाएगी. इसी तरह यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा और ये फैक्टर जो है वो कॉमन आएगा. इसी तरह अगली टर्म्स के अंदर x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री. सिमिलरली मतलब आप देख सकते हैं जो है वो यहाँ पर एक जो है वो सीक्वेंस बन रहा है x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन. देन दो फैक्टर हो गए x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और x नॉट एक्स टू. तो फर्स्ट में वन टू कंबाइन हो रहे हैं, सेकंड में ज़ीरो टू और थर्ड में ज़ीरो वन. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x नॉट एक्स वन एक्स टू ये तीन पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके जो फैक्टर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो जस्ट फर्स्ट टू पॉइंट्स यानी एक्स नॉट और एक्स वन यूज़ हो रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर चार पॉइंट्स हैं तो आखिरी छोड़ के बाकी जो तीन हैं वो आपके कोफिशिएंट्स के अंदर जो है वो यूज़ हो रहे हैं पेयर की फॉर्म में. इसी तरह यहाँ पर जो है वो थ्री फैक्टर्स की फॉर्म में आपके जो है वो मल्टीपल्स आ रहे हैं.
यहाँ पर लास्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज x4, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर्स में है वो x3 तक आ रहा है। तो एक दफ़ा यहाँ पर अगर इन तीनों फैक्टर को देखें, यहाँ पर x0 मिसिंग है, फिर इन तीनों को देखें x1 मिसिंग है, इन तीनों को देखें x2 मिसिंग है, और इन तीनों को देखें तो x3 मिसिंग है। यही चीज़ ऊपर भी है, यहाँ पर x0 मिसिंग है, यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2। इसी तरह यहाँ पर 1 मिसिंग है और यहाँ पर 0 मिसिंग है। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं। ये 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज़, इसको हम स्किप कर देते हैं। हमारे पास जो फाइनल इसका फार्मूला आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दिस इज़ द फार्मूला f prime of x is equal to f of x naught x1 plus bracket into first term is x minus x naught plus second term is x minus x1 into f of x naught x1 x2 plus x minus x1 x minus x2 plus x minus x naught into x minus x2 plus x minus x naught x minus x1 into f of x naught x1 x2 x3 plus यहाँ पर आप देख लें total there are 4 terms. In each term there are 3 factors, and in each term there is a 1 point that is missing. So in first term there is x naught missing, in second term there is x1 missing, and in third term there is x2 missing, and in the fourth term there is x3 missing. So आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं, एक तरतीब बन रही है। So this is the first derivative by using Newton's divided difference interpolation formula. एक तरीका और भी है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सिंपली क्या करें कि उसमें x की वैल्यू पुट ना करें, फंक्शन फाइंड कर लें। ये जो आपका बेसिक फार्मूला है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इन केस अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फार्मूला याद नहीं है या कहीं से आप जो है उसको भूल गए हैं ड्यूरिंग पेपर, तो आप ये कर सकते हैं कि ये फार्मूला चूँकि वेरी सिंपल है, आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है तो आपको अच्छी तरह ये याद भी होगा। इसका आप डेरिवेटिव ले लें, बल्कि इसको आप एज इट इज़ सॉल्व कर लें, वैल्यूज़ वगैरह पुट करके टेबल बना के एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x1 x2 ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दें, तो यू विल हैव अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो अगर आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव पूछा गया है, तो सिंपली आपको जो पॉलिनॉमियल एंड पे मिलेगा इस फार्मूले से, उसका आप सिंपल डेरिवेटिव ले लें, दैट विल बी वेरी सिंपल डेरिवेटिव। इसी तरह उसके सेकंड डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, लेकिन इसमें यह है कि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 फैक्टर्स हैं तो इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहरहाल दोनों मेथड से आप जो है वो डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, या तो यही फार्मूला याद कर लें और यहाँ से पॉलिनॉमियल बनाने के बाद आप उसके जितने मर्जी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एंड द सेकंड मेथड इज दैट you have to find the you have to remember the formula for the first order derivative by using Newton's divided interpolation formula. तो ये आपका फार्मूला आ गया है, इसको आप याद रख सकते हैं, तो इसको आसानी से आप वैसे याद रखा जा सकता है। तो इसको एज इट इज़ आप डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। If the derivative is required at any particular point x equal to x steric, then we substitute x is equal to x steric in above equation. अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है किसी भी एक्स स्टेरिक के ऊपर, एक्स स्टेरिक इज द गिवन एक्स, जो आपको गिवन पॉइंट होता है उसको हम एक्स स्टेरिक यहाँ पर कह रहे हैं, तो आप सिंपली इस फार्मूले के अंदर क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स स्टेरिक पुट कर दें, तो आपकी राइट हैंड साइड पे एवरी टर्म हैव द नोन वैल्यूज, वो आपके पास आ जाएंगी। तो सिंपली यू विल गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम राइट हैंड साइड। If the data is equal spaced, the formula is simplified. अगर आपका डाटा इक्वली स्पेस्ड हो जाए तो फिर भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ये फार्मूला और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो किस तरह के, अगर आप जो है वो आपका डाटा इक्वली स्पेस्ड है
उसका मतलब क्या होगा कि x माइनस एक्स नॉट की जगह पे अगर हम इसका फार्मूला यूज कर लें, दैट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच, वो भी यूज किया जा सकता है। या फिर सिंपली आप ये कर सकते हैं कि ये जो x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, नहीं, इसको आप इसी तरह ही चलाएंगे। तो जो भी खैर आपको x दिया गया होगा वो आप यहाँ पर पुट करके इक्वली स्पेस इंटरवल के लिए भी जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हैं। फार्मूला यही होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो इसी को आप दोबारा डिफरेंशिएट कर लें। तो आपके पास अब आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम, और राइट हैंड साइड पे आपने टोटल डेरिवेटिव ले लिया तमाम पूरी सीरीज का। अब इसको भी टर्म बाई टर्म आप जो है वो डिफरेंशिएट करते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। सेकंड टर्म ये है, इसका डेरिवेटिव x के थ्रू आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका भी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बाकी x नॉट x1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो पहली टर्म आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आएगी वो होगी 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2। इसी तरह यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा लें आप, ये तो कांस्टेंट है इसको एज इट इज़ रखेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लें या इनको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ले लें। तो अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं एक्स माइनस एक्स वन एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यू विल गेट एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स टू। यहाँ पर फिर आपको एक्स माइनस एक्स नॉट एज इट इज़ और एक्स माइनस एक्स टू का डेरिवेटिव 1 आ गया, फिर एक्स माइनस एक्स टू एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इन दो फैक्टर से दो टर्म्स आपको मिलेंगी, इसी तरह इन दो फैक्टर से आपको दो टर्म्स मिल जाएंगी, इन दो फैक्टर से आपको दो अलग-अलग टर्म्स मिल जाएंगी। तो हर टर्म जो है आप इसको नोटिस करेंगे कि दो दफ़ा आ रही है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इसका कोफिशिएंट बनेगा वो 2 टाइम होगा इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स टू। तो ये आप नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देख भी सकते हैं। दिस इज 2 टाइम x माइनस एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स वन प्लस x माइनस एक्स टू इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपने डेरिवेटिव लिया है और उसके बाद जो कोफिशिएंट्स थे वो डबल आ रहे थे तो उनको ऐड करके आपने 2 कॉमन ले लिया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म्स को आप इन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो पेयर आ रहे हैं, दो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, ये भी अब आपके डबल आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर भी आपने 2 को कॉमन ले लिया और अंदर वो फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर आपने लिख दिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही तरतीब आ रही है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, लास्ट टर्म इज 4 x4, तो 3 तक आपके कोफिशिएंट्स क्योंकि आने हैं इसके अंदर। अब तरतीब क्या है, पहले इसमें 3 फैक्टर थे, अब 2 फैक्टर आ रहे हैं हर टर्म के अंदर। पहले में 0 1 है, फिर 0 2 है, फिर 0 3 है, यानी 0 का कॉम्बिनेशन है 1 2 3 के साथ, फिर 1 का कॉम्बिनेशन 1 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ आ गया और 3 के साथ आ गया, 0 के साथ ऑलरेडी यहाँ पर उसका कॉम्बिनेशन है। फिर इसी तरह 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ आ गया, 2 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी 0 के साथ भी आ चुका है और 1 के साथ भी आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं ये तरतीब बन रही है यहाँ पर भी। तो 3 फैक्टर्स हैं जिनमें x माइनस एक्स नॉट आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 फैक्टर्स हैं जिनके अंदर x माइनस एक्स वन आ रहा है फर्स्ट, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ। इसी तरह 3 टर्म्स हैं जिनके अंदर x माइनस एक्स टू आ रहा है, 1 2 एंड 3। 3 ही टर्म्स हैं जिनके अंदर x माइनस एक्स थ्री आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो है वो सीक्वेंस बन रहा है, इसको भी याद रखना एज सच इतना टफ नहीं है। सिंपली 2 क्या है, हर फैक्टर से कॉमन आ रहा है तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी उसी तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट, वो जहाँ पर भी दिया गया हो, चाहे उसके सेंटर में हो चाहे उसके स्टार्ट में हो,
जहाँ पे भी हो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस एज सच इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक्स जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू के करीब होना चाहिए या एंडिंग वैल्यू के या फिर दरमियान वाली वैल्यू से। जहाँ पे भी एक्स आपका पड़ा है आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा और वहाँ से जो हर कॉलम के अंदर पहली वैल्यू होगी वो आपको पिक करके यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। बाकी एक्स आपको दिया गया होगा, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ये सारे भी आपको फार्मूला टेबल के अंदर जो है वो दिए गए होंगे। तो अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल एक कर लेते हैं। 1.6 के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको डाटा दिया हुआ है, दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, दिस इज एक्स थ्री, दिस इज वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के बाद 1.5 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो डाटा इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आपने पहले जितने भी मेथड पढ़े हैं वो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। द डाटा इज नॉट इक्वली स्पेस्ड, we use the divided difference formulas to find the derivatives. We have the following difference table. सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो इसमें हमेशा एक्स नॉट आपकी पहली वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें सच जो है आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू इज द एक्स नॉट। सबसे पहले आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लें। हमने इसके लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको लर्न किया था कि किस तरह से आपने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला टेबल जो है वो बनाना है। फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, ये कैसे आता है। वाई नॉट माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वन माइनस 1.5। तो यू कैन चेक ऑन योर कैलकुलेटर। तो ये आप लोगों ने जो है वो वेरीफाई कर लेनी है, तमाम वैल्यूज़ ठीक है। तो अब आपका ये क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, सेकेंड ऑर्डर। दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, दिस इज थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर तक आपका जो है वो फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो सकता है। उससे आगे हम उसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड हियर फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये आपने इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लिया। कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है वहाँ तक हमने इसको राइट कर लिया। बाकी पॉइंट्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। तो मैक्सिमम एक्स थ्री तक आप जा सकते हैं। इससे अगली टर्म एक्स फोर आना है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ तक आपने इसको लिख के स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट आपने इसमें x की जगह 1.6 पुट कर दें। बाकी एक्स नॉट, एक्स वन, एवरीथिंग आपको टेबल के अंदर दी हुई है। और जो आपके डिवाइडेड डिफरेंस है हर कॉलम के अंदर, जो पहली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑन कैलकुलेटर यू विल हैव दिस आंसर। एंड वी आल्सो फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला जितना हमारे पास डाटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें फ्रॉम टेबल, तो यू विल गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट 1.6। तो ये हमारा मेथड था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे मज़ीद इसको पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका एक्स एक्स नॉट के इक्वल या किसी भी एक्स की इक्वल आ जाए तो उस सूरत में ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। ऑब्वियसली किसी भी अननोन एक्स के ऊपर भी फाइंड किया जा सकता है, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल के अंदर किया है। तो अब आप ये प्रॉब्लम जो है वो खुद से ट्राई कीजिएगा। दीज आर वेरी सिंपल। बाकी कोई इशू आता है तो आप मुझसे या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।